हाय हेलो प्रणाम पहलाग नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। किसी भाई ने मुझे कमेंट्स किया था कि एथर के ऊपर जो इसका जिप मोड और इको मोड है उस पर रेंज टेस्ट करके बताएं। सॉरी उसके लिए, मुझे काफ़ी लेट हो गया, टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो आज मैं करने जा रहा हूँ एथर 3.7 किलोवाट का जिप मोड में रेंज टेस्ट। तो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी 100% है बैटरी। तो अभी आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज जो है वो 100% है। और इसमें कि जिप मोड में ये है जिप मोड में 105 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। वैसे एथर में ट्रू रेंज ही दिखाता है, ये कोई भी इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा ही चल जाएगी 2-4 किलोमीटर, बट कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको आज इसका कंप्लीट रेंज टेस्ट दिखाऊंगा जिप मोड पे कि ये जिप मोड में 100 to 0 कितना किलोमीटर की रेंज देती है। तो बने रहिए वीडियो में। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rainy days. It feels like a decade, just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire,
Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. अभी देखिए, अभी सामने फ्लाईओवर है। मैं आपको फ्लाईओवर पे चढ़ा के दिखाता हूँ। बहुत इजीली ये किसी भी बड़े से बड़े फ्लाईओवर पे चढ़ जाती है बिना किसी स्ट्रगल के। और पिकअप में भी कोई इशू नहीं है, पिकअप में कोई लैग नहीं है। तो पावर के मामले में तो जिप मोड सच में बहुत पावरफुल है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। और आप देख रहे हैं, मैं जब भी इसको पिकअप बढ़ा रहा हूँ इसका, इवन फ्लाईओवर पे भी, तो मुझे आगे जाके ब्रेक मारने पड़ रहे हैं क्योंकि इसके पिकअप में कोई लैग नहीं है बिल्कुल भी। तो काफ़ी सही है इसका जिप मोड पावर के मामले में। बाकी रेंज के मामले में इसमें जितनी दिखाता है 125, उतनी ही ये देता है, चाहे आप इसको 80 किलोमीटर पे ही पूरे दिन भर चलाते रहिए, और या फिर आप इसको चाहे आप 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से चलाइए, ये आपको मोड के अकॉर्डिंग ही रेंज देगा। और अगर जिप मोड में है तो 105 किलोमीटर की ही रेंज ये देगा और उतनी ही ये दिखाता भी है। और इको मोड में सेम 125 की रेंज दिखाता है और उतनी ही देता भी है। but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT
feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire, I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I जो feel. लोग भी देहरादून से हैं वो जानते हैं कि थानो की रोड पे जो थानो का पुल है उसके बाद से इतना स्टीप क्लाइंब है, और वहाँ पे भी ये चाहे मैं इसको 20 की स्पीड पे लेके जाऊँ या फिर मैं उसको अचानक से एक्सेलरेट करूँ तो ये 60 जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। तो आप देखिए, ये तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ कोई है नहीं, तो मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है और ड्राइव करना पड़ रहा है, इसलिए मैं एक हाथ से वीडियो बना पा रहा हूँ और एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इसको इसकी मैक्सिमम स्पीड तक नहीं खींच रहा, वरना मुझे नहीं लगता कि ये 60 to 80 जाने में भी कोई थोड़ा सा भी लैग लेगा। पावर की कोई कमी नहीं है इसके जिप मोड में। अभी आप देखिए मेरे सामने कितना स्टीप क्लाइंब है, और स्कूटी अभी 20-22 की स्पीड पे चल रही है, और मैं अगर इसको पावर बढ़ाना चाहूँ अभी तो आप देखिए बिल्कुल लैग नहीं है। मुझे खुद ब्रेक मारने पड़ रहे हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड में कोई भी लैग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ना कोई डिले है, और ना ये स्कूटी अपनी स्पीड स्लो कर रही है इंक्लाइन को देख के, या कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रही है ये चढ़ने में। और मुझे जस्ट इसका रेंज टेस्ट करना था कि ये जिप मोड में मैक्सिमम कितना जाती है, इसलिए मुझे थानो की साइड से आना पड़ा, जो कि बहुत क्लोज है नेचर के और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी एंजॉय करिए।
देखिए अभी डाउन हिल में है, बिल्कुल डाउन हिल है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट एक्सीलरेटर को ट्विस्ट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है एथर, इसको मैजिक ट्विस्ट बोलता है, जिसमें कि ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस स्कूटी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही मैं इसको ट्विस्ट करूँगा आगे की साइड को, तो ये मैजिक ट्विस्ट बोलता है एथर इसको, इससे कि ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। और लिटरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, मुझे कई बार तो ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जहाँ पे मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ब्रेक चाहिए मुझे बहुत जल्दी, तो वहाँ पे मैं सडन ब्रेकिंग के लिए ब्रेक अप्लाई करता हूँ। वरना अगर छोटा बड़ा हम्प वम्प या ऐसा कुछ है, मुझे स्कूटी बहुत स्लो करनी है, रोकनी है, तो वहाँ पे मैं मैजिक ट्विस्ट का यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिससे कि ये एज ए रीजनरेटिव भी काम करता है, जिससे बैटरी चार्ज भी होती है। और आप देखिए अगर स्कूटी अभी 35 या 40 की स्पीड में भी है, तो मैं जैसे इसको ट्विस्ट करूँगा ये तुरंत ब्रेक अप्लाई कर देगा। देखिए कितना जल्दी है, विद इन 3 to 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में ये स्कूटी को बिल्कुल जाम कर देता है। अभी आप देखिए मैं ऑलमोस्ट 50 पे इसको अप्लाई करूँगा। देखिए मुझे सिर्फ 3 से 4 सेकेंड लगे 50 से बिल्कुल 10 या 15 की स्पीड पे होने में, ऑलमोस्ट 0 हो जाता, बट स्कूटी डिसबैलेंस हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे एक हाथ से वीडियो शूट करना है और दूसरे हाथ से मुझे स्कूटी चलाना है। तो आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही होगी, वीडियो क्वालिटी, या बहुत ज़्यादा मेरा हाथ बहुत ज़्यादा सेक कर रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको इग्नोर करना और उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, आई नो। बट लेकिन ये जस्ट रेंज टेस्ट करने के लिए कि जिप मोड में कितना जाता है। मैं इतने बड़े एरिया से होते हुए आ रहा हूँ और अभी भी देखिए इसमें 53 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो मैं तो थक गया हूँ टूट गया मैं तो। अब मैं सीधे घर जाऊँगा, देखता हूँ कितना किलोमीटर में और ज़्यादा इसको चला पाऊँ, उसके बाद तो मैं थक गया, मैं टूट गया, मैं घर जाऊँगा सीधे। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes. अभी देखिए इसमें एक फीचर है ऑटो होल्ड का, ये देखिए, ये अभी देखिए मैं चढ़ाई पे खड़ा हूँ, ये देखिए, ठीक है, पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी चढ़ाई है, अच्छी खासी चढ़ाई है। तो जैसे ही मैंने चलते चलते ब्रेक छोड़े तो ये ऑटो होल्ड पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लग गए हैं इसके, मैंने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किए हुए। और इसको डिसेबल करने के लिए मुझे जस्ट ब्रेक प्रेस करने हैं और गाड़ी को एक्सीलरेट करना है, दैट्स इट। ये बहुत अच्छा फीचर है। कभी आप चढ़ाई में आपको खड़ा होना पड़ता है तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। जैसे यार सुबह से इतना चलाने के बाद इसमें 50% बैटरी रह गई है और 50% की रेंज भी बची हुई है, क्या बोले। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको ब्रेक छोड़े और ये खुद ही रुक गई ऑटो होल्ड की वजह से, क्योंकि नीचे थोड़ा सा डाउन हिल है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे, स्कूटी चल चुकी है ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर के अराउंड। और यहाँ देखिए
आई थिंक इसका कोई नया अपडेट भी आया होगा। मैंने कोई ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, ये ऑटो मोड पे, ऑटो होल्ड पे रुकी हुई है। एक खूबसूरत चीज़ दिखाऊं आपको, देखिए। आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इसको, बट लेकिन सच में बहुत खूबसूरत व्यू है। ये सनसेट का व्यू है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी लाइटिंग भी थोड़ी सी कम हो गई है, इसीलिए। सॉरी फॉर दैट, मैं रात को वीडियो क्लोज नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मैं रात को। लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि कल मैं टोटल कितना गया था जिप मोड में। वैसे जिप मोड में या नॉर्मल मोड में एथर में ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अगर वो ओडोमीटर में जिप मोड में 105 की रेंज दिखाता है तो वो ट्रू रेंज ही होती है, उतनी ही मिलती। फिर आप उसको चाहे 20 किलोमीटर की स्पीड से भगाओ या 40 kmph की स्पीड से भगाओ या 80 kmph की स्पीड से भगाओ। और अगर वही सेम इको मोड में अगर वो 125 की रेंज दिखा रहा तो वो ट्रू रेंज ही होती है। फिर आप उसमें चाहे स्लोएस्ट स्पीड 20 पे चलाओ उसको पूरे 0 किलोमीटर करने तक और बैटरी को 0 करने तक, या तो फिर आप उसको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे 0 होने तक बैटरी को, तब भी वो सेम ही 125 तक ही देता है। ऐसा उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि एथर का जो ओडोमीटर है वो ट्रू रेंज ही दिखाता है। और उतना ही मुझे मिला है। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है गाड़ी को चलाते हुए, तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ इशू नहीं आया, बहुत ज़्यादा लैग नहीं आया किसी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ। उसमें तो मुझे ट्रू रेंज ही मिलती है। मैंने कल रात लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग में जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी जिप मोड में, तो उस टाइम पे जो ओडोमीटर पे डिजिट दिखा रहा था तो वो था 400.8 किलोमीटर, जो उस टाइम पे हमारा टोटल जो था हमने उतनी गाड़ी चला रखी थी। और इवनिंग में हमारी जो दिन भर जो गाड़ी चली थी वो 467.5 किलोमीटर हमने पूरे दिन भर में, ऑलमोस्ट ये मानिए कि 400 किलोमीटर मॉर्निंग में थी तो 67.5 किलोमीटर हमने पूरे दिन भर में चलाया। और ओडोमीटर में उसमें 46 किलोमीटर की रिमेनिंग रेंज दिखा रहा था, उसमें उतनी और रेंज बची हुई थी। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 66 पॉइंट मॉर्निंग में जब हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था जिप मोड में, तो उस टाइम पे जो ओडोमीटर पे डिजिट दिखा रहा था, या मतलब जितनी हमारी ट्रिप दिखा रहा था, वो 400 किलोमीटर की दिखा रहा था कि 400 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी तक। और इवनिंग तक हमने जिप मोड पे टोटल गाड़ी को चलाया था 67.5 किलोमीटर। क्योंकि टोटल जो उसके बाद जो ट्रिप दिखा रहा था वो 467.5 किलोमीटर दिखा रहा है और 400 मॉर्निंग में था, तो हमने दिन भर 67.5 किलोमीटर टोटल चलाई दिन भर में। और रिमेनिंग जो थी मेरे उसमें 46 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी। तो अगर आप 67.8 किलोमीटर टोटल दिन भर में चले और 46 kmph की जो हमारी रेंज बची हुई थी, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें 67.5 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर, तो आप ये देखेंगे 112-113 किलोमीटर की रेंज हमें मिल रही है जिप मोड में। तो अगर एथर रेस्टा 3.7 किलोमीटर को आप जिप मोड में चलाते हैं तो आपकी स्पीड उतनी मैटर नहीं करती है। वो 105 किलोमीटर की आपको टोटल रेंज दिखाता है डिस्प्ले पे, और आप देखिए मुझे उससे ज़्यादा मिली है। हो सकता है मैंने बीच में बहुत स्लो किया था, या मतलब कहीं कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा धीरे कर रहा था जहाँ पे क्लाइंब था या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अप हिल था, वहाँ पे मुझे धीरे करना पड़ रहा था क्योंकि एक हाथ से मैं स्कूटी चला रहा था और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लैग आ सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन मैंने अभी तक नहीं देखा है इस 1.5 महीने के पीरियड में। मुझे 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया, इतना फ्लक्चुएशन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि जिप मोड पे मुझे टोटल 112 से 113 किलोमीटर की रेंज मिली है। वो भी मिक्स, आप इसको मिक्स बोल सकते हो, मिक्स स्पीड में, कि मैं किसी टाइम पे 25 की स्पीड तक भी आया हूँ डाउन, और किसी टाइम पे मैं 80 किलोमीटर भी मैंने टच किया। और मैं
मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा कि अगर ऑलमोस्ट 60 to 80 किलोमीटर